معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ خوشیاں مناؤ بھائیو، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہوں سرکار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے، مختار آ گئے۔ مدنی مذاکرہ دیکھنے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ ایک ولی کا دیدار کر رہے ہیں، اور دوسری بات آپ ایک مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک سانس کے بدلے نیکی مل رہی ہے۔ ربیع النور شریف منانے کے لیے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ بندے کو جو لطف اور اندوز ہونا، پہلے نمبر پہ مدینہ شریف اور دوسرے نمبر پہ فیضان مدینہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے کا آپ کو جذبہ اور خوشی سے زیادہ ان دو جگہوں کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہیں ہوگی۔ جب ادھر آئے نا تو واقعی ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم اچھی جگہ پہ آ گئے ہیں۔ ایسے یقین مانے کہ دل چاہتا ہے کہ ادھر سے بندہ جائے ہی نہ، ان کی نعتیں سنتا رہے، باپا کے بیان سنتا رہے، باپا کی زیارت کرتا رہے۔ آج کے مدنی مذاکرے میں کچھ کوئی خاص بات سیکھی ہو آپ نے؟ ربیع الاول میں میلاد کیسے کرنا ہے، لائٹنگ کیسے کرنی ہے، اور جو مسواک کا بتایا اور نفلی روزے ماشاءاللہ بتائے، اور انشاءاللہ میں 5 روزوں کی نیت کرتا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے، اور خصوصاً ربیع الاول شریف کی عمر پہ یہ لائٹنگ وغیرہ، اور ماشاءاللہ یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، بہت دل میں ایک سرور آیا۔ کیا ملتا ہے مدنی مذاکرے میں، کیا سیکھا ہے آپ نے؟ نماز کی طرف انسان چلا جاتا ہے، جو گناہ کے کام ہوتے ہیں انسان اس سے توبہ کرتا ہے، جو برائیاں ہوتی ہیں انسان اس کے اندر اپنے اندر یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس کو چھوڑ دے۔ حضرت کی جو باتیں ہیں وہ عشق رسول تک پہنچاتی ہیں اور نبی سے محبت سکھا دیتی ہیں۔ حضرت نے کوئی بات بول دی تو اس پہ جتنے بھی عاشق رسول ہیں وہ لبیک کہہ دیتے ہیں۔ پاپا نے جو ترغیب دلائی ہے روزے رکھنے کی، ماشاءاللہ سے 5 روزے کی نیت کری ہے میں نے۔ جو ان کی سادگی ہے ماشاءاللہ، پھر ایک تو اس سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی جو باتیں ہیں ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ دل کو چھو جاتی ہیں۔ بس الیاس کا عطار قادری کی ساری باتیں دل کو چھونے والی ہیں، کوئی ایک بات میں نہیں کہوں گا، ساری باتیں ماشاءاللہ چھونے والی ہیں۔ الحمدللہ سینی ماحول نے بہت کچھ دیا، امامہ اس کے بعد نمازوں کا پابند بنا دیا، سنتوں کا پابند بنا دیا۔ الحمدللہ سینی ماحول نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ الحمدللہ میرے سفید آگے ہے اسی ماحول میں، تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ میرے پیر مرشد نے رکھوائی تھی۔ جیسے جیسے آتے ہیں ویسے ویسے جنون بڑھتا جا رہا ہے یہاں پہ۔ مرشد کو دیکھنے کا جو جنون ہے، جو مزہ ہے نا، لطف ہے، وہ بیان نہیں کر سکتا میں۔ کاش کہ ان کا دیدار بھی ہو جائے اور ان سے ملاقات بھی ہو جائے۔ پوری کوشش کروں گا جو مرشد ہمیں ایڈوائز دیتے ہیں اس پہ عمل کریں ہم۔ یہ ماحول نہ ہوتا تو شاید یہ داڑھی شریف نہ ہوتی میرے پاس، یہ مرشد کی بدولت ہی ملا ہے۔ یہ لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا یہاں پہ تب میں نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ یہ میں سجاؤں گا، اور الحمدللہ تب سے ہی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے نیت کروں گا کہ مدنی قافلوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کروں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے خارج ہوں گے، باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دل میں نیت ہونا ضروری ہے اور کافی بھی، اور زبان سے کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ مثلا کہہ دیں کہ جبکہ دل میں نیت ہے، زبان سے بھی اس کو دوہرا لیں کہ میں نے سننا چاہیے اعتکاف کی نیت کی۔ یہ ذہن میں رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔
अगर नियत नहीं की थी तो मस्जिद में नहीं खा पी सकते। तो खाना पीना सामने आ गया, इफ्तार आ गई, रमज़ान है, रोज़ा है, तो अब ये कि पहले एहतिकाफ की नियत कर लें, अब इफ्तार वगैरह कर लें। तो हम खाने पीने के लिए, इफ्तार करने के लिए, सोने के लिए अगर कोई एहतिकाफ की नियत करेगा तो उसको एहतिकाफ का सवाब नहीं मिलेगा। सवाब इसी सूरत में मिलेगा जबकि अल्लाह की रज़ा के लिए या सवाब के लिए नियत की हो। मुनासिब तरीक़ा ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए एहतिकाफ की नियत करें, फिर कुछ ज़िक्र व दुरूद करें, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब ये कि भले आप खाने पीने की ज़रूरत है तो खाएँ पिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1444 हिजरी के माह रबीउल अव्वल शरीफ की आज दूसरी शब है, दूसरी रात है। इस मुनासबत से ज़ियाए दुरूद सलाम के पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 2। बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये अभी मुझे खबर मिली है कि मीरपुर कश्मीर में रेड अलर्ट कर दिया गया कि खौफनाक जलजला आ सकता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से आफियत की, अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये जो जलजले की खबर आई है तो ऐसा ना हो, जलजला ना आए। वैसे ही कश्मीर की पहले भी कमर टूट गई थी और कश्मीर ही नहीं अतराफ में इस्लामाबाद पता नहीं कितने शहरों में और न जाने कितने लोग इस जलजले में दुनिया से रुखसत हो गए थे। अभी तक बेचारे जो टूटे फूटे लोग हैं वो शायद उठ ना सके हों। इलाहुल आलमीन आजमाइश के बगैर ही हमको बगैर इम्तिहान के पास कर दे। इन बेचारों पर रहम फरमा, हम सभी पर रहम करम फरमा, आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन। इलाहुल आलमीन सैलाब ज़दगान अगरचे सैलाब अब जा चुका लेकिन ये बेचारे न जाने कब अपने पाँव पर खड़े होंगे। इन पर भी रहमत की नज़र फरमा दे, इनकी छतें बन जाएं, इनके घर तामीर हो जाएं, इनके रोज़गार के भी असबाब हो जाएं। बेचारे ये सुकून की ज़िंदगी तेरी इबादत में, तेरी यादों में गुजारने के काबिल हो जाएं। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रिस्क असेसमेंट यानी खतरे को भांपना। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उसे शुरू करने से पहले अच्छी तरह से गौर करना कि इसमें आपको या दीगर लोगों को क्या खतरात लाहक हो सकते हैं। फिर इन खतरात से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना ताकि काम भी पाए तकमील को पहुंचे और किसी का नुकसान भी ना हो। हमारा प्यारा दीन इस्लाम भी हमें तदबीर के साथ काम करने का दर्स देता है, यानी इब्तिदा से ही अंजाम पर गौर कर लेना। लेकिन बदकिस्मती के साथ रिस्क असेसमेंट में हमारी इतनी सुस्ती है कि आए रोज लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं। किसी की जान जा रही है तो कोई जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाता है या फिर वक्ती तौर पर सख्त आजमाइश का सामना करना पड़ता है। बच्चों की देखभाल के हवाले से रिस्क असेसमेंट का बड़ा फुकदान है। छोटे बच्चों की फितरत में शामिल है कि जो चीज उनके हाथ लगती है वो उसको मुंह में डालते हैं। हमारे घरों में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो जमीन पर बिखरी पड़ी होती हैं और बच्चा या तो उनको निगल लेता है या फिर वो सांस की नाली में फंस जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूके में हर हफ्ते कम बेश 3 बच्चे ऐसे हादसात में इंतकाल कर जाते हैं जिनसे बचा जा सकता था और मजीद 2000 बच्चे इन एक्सीडेंट्स की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। आमतौर पर छोटे बच्चों को जो हादसात पेश आते हैं उनका तज़किरा करता हूं। गले में रस्सी का फंदा लग जाना, खिलौनों या घड़ियों में मौजूद छोटी बैटरीज को निगलने से केमिकल बर्न या फिर दम घुट जाना, पानी में डूबकर मौत वाक़या हो जाना, लिक्विड केमिकल पी लेने से पॉइजनिंग, खाने की चीजों का गले में फंस जाना, सीढ़ियों से गिरना,
अद्वियात को खा लेना और बिजली का करंट लग जाना। बच्चों में होने वाले ये वो कॉमन एक्सीडेंट्स हैं जिनसे बचना मुमकिन है अगर बड़े तदबीर से काम लें और रिस्क असेसमेंट के जरिए हिफाजती इकदाम करें। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि आप इस हवाले से क्या मशवरा देंगे? माशाअल्लाह, आपने तो बहुत जामे अंदाज में मशवरे अता फरमाए। आप डॉक्टर भी हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट हैं, आप तो आपको ज़्यादा तजर्बात है। ये तो होता है कि बेहतियाती की वजह से बच्चे बेचारे वो बड़े अजीब अजीब तरीके से फौत होते हैं। आपने चंद बातें बताई। ये नाजुक जगहों पर चढ़ भी जाते हैं, ये झांकते हैं, फिर दूसरा बच्चा उसको बाद होगा धक्का दे देता होगा, वो नीचे सर के बल गिरे या जिस तरह गिरे हों तो यूं भी अम्बात होती है, गिर कर भी। अच्छा, बाद होती है बच्चों को छुपने का बड़ा जज्बा होता है। बड़े जब आएंगे ना, बाप आएगा, माँ आएगी, ये छुपेंगे। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी संदूक में, बॉक्स में या कब्बर्ड में ये छुप जाए, दरवाजा बंद कर दे। और आने वाला जब आएगा उसको तो पता नहीं चलेगा मुन्ने मियाँ छुपे हुए हैं। अब वो बस छुपे हुए रह जाते हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलता अंदर बाजों का, तो फिर वो लाश ही मिलती है। अच्छा, इस तरह छुपने के ताल्लुक से जब मुझे तजर्बा बच्चों का, तो सख्ती से पाबंदी रखी है, कभी बॉक्स में छुपना नहीं। इनका भरोसा नहीं, फ्रिज में भी छुप जाए। डीप फ्रीजर हो घर में तो हो सकता है उसमें भी कूद जाएंगे कि चलो छुपता हूँ, अब्बू आ रहे हैं, तो गए काम से। फिर इस तरह पानी के टैंक में भी ये गिर जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि पानी की बाल्टी में ये डूब कर भी बाज़ ये फौत हो जाते हैं। बड़ी बाल्टी होती है, बच्चा छोटा होता है, वो खेल रहा होता है, खेलते खेलते वो झांक कर पानी को देखता होगा या पानी को यूं पकड़ता होगा, और इसमें बेचारा वो, तो इस तरह मतलब अमवात। करंट लगने के भी तो अब नीचे मतलब बिजली की वायरिंग इस तरह घरों में होती है कि बच्चे उससे बस कोई भी चीज़ है ना, बच्चों की फितरत होती है, उसको पकड़ेंगे, उसको खींचेंगे। ये इनको और कोई खास काम, खास क्या मतलब काम होता ही नहीं है ज़ाहिर है। तो इस तरह के काम ये कर रहे होते हैं, इसमें उंगली डालेंगे, कभी नंगी तार पकड़ लेंगे, मुंह में डालेंगे तार, हर चीज़ मुंह में डाल रहे होते हैं। तो यूं भी बेचारे मौत का शिकार हो जाते हैं। हमारे एक अजीब व गरीब मतलब यानी कराची में हादसा हुआ था चंद साल पहले। मेरी बड़ी बहन को उसी माँ ने गाल बना के बताया था। इसके वो बेचारी हज पर गई थी, मियाँ बीवी हज पर गए थे, 3 बच्चियाँ थी, वो किसी के पास रखवा दी उन्होंने, संभालो हम आ रहे हैं। अब वो बेचारे हज पर गए और यहाँ ये हुआ कि वो दूध रखा हुआ था, उसमें वो दूध बच्चियों ने पिया, 3 बच्चियां इंतकाल कर गई। पता ये चला कि दूध में एक छिपकली मरकर फट गई होगी, क्योंकि छिपकली अगर छिपकली साबुत निकल आए ना तो उसका जहर नहीं फैलता, मैंने सुना यही है। जब फटती है तो एक छिपकली 100 आदमी मार सकती है, इतना खतरनाक उसका जहर होता है। तो वो छिपकली उसमें गिर कर मर गई होगी, फट गई होगी। वो छिपकली वही बेहतियाती, दूध खुला होता है, ग़िज़ाएं बर्तन खुले रखे होते हैं हमारे यहाँ। तो ये कि 3 बेटियां उसकी मर गई। ये बेचारे जो मियाँ बीवी हज पर गए थे, अभी हज अय्याम में हज शुरू नहीं हुए थे, तो हज किए बगैर इनको वापस रोते हुए बेचारे घर पहुंचे। तो यूं बेहतियातियाँ तरह तरह से की जा रही होती हैं हमारे घरों में। और इस तरह मतलब ये कि छोटे बच्चे जो हैं ये बेचारे मौत का शिकार हो जाते हैं। कभी ये कि रोडों पे रोड क्रॉस करते, मैं छोटा था ना तो मेरी माँ जो है ना, ककरी ग्राउंड के करीब ही हम रहते थे, बस 2 मिनट का भी रास्ता नहीं था, यानी कि बहुत करीब, मतलब 2 मिनट का रास्ता। लेकिन मेरी माँ बोलती है ककरी ग्राउंड नहीं जाना, इसलिए कि वो बीच में रोड आता है कुशादा, ये बच्चा है, ये दौड़ेगा, और रोड पे दौड़ना जब ट्रैफिक जारी हो तो खतरनाक तरीन है। वो गाड़ी वाला रोकना भी जाएगा तो रोक नहीं सकेगा, इतना रोकेगा वो। अगर
फुल ब्रेक लगाएगा तो भी हो सकता है गाड़ी कल्टी हो जाए लेकिन ना रुके, बच्चा इतना करीब से भाग रहा होता है। तो ये मतलब मेरी माँ नहीं जाने देती, और मैं भी बस अल्लाह का करम है कि वो दोस्त मेरा बोलता था कि चल, तेरी माँ को क्या पता तुमने, मेरी माँ ने मना किया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो बोल देना गली में खेल रहा हूँ, बराबर की गली में, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, ककरी और नहीं आऊँगा, मेरी माँ मना करती है। तो इस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये मेरी बचत की सूरत है, वरना रोड पर बेतहाशा बच्चा तो भागता ही है, तो समझ थोड़ी आती है। ये रोड क्रॉस करने से भी बच्चे को रोकना है। इस तरह के बाज गेम होते हैं, इनमें भी मतलब यानी कि खतरात होते हैं, और तरह तरह के बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, और बिल्कुल यानी कि रफ टाइप के गेम होते हैं, इससे भी हलाकतें होती हैं, पटाखों से हलाकतें होती हैं। खासकर शबे बरात में खुसूसियत के साथ ऐलान होता है हमारे यहाँ कि पाबंदी है पटाखे बनाने पर, लेकिन हमारी गुजराती कहावत है कि જ્યાં રક્ષક જ ભક્ષક થાય ત્યાં પ્રજાનું શું પૂછવું, यानी मुहाफिज जो है वही अगर खाना शुरू कर दे तो हम कहाँ जाइए। तो हमारे यही होता है कि जो भी राशि रिश्वतखोर किस्म के लोग होते हैं उन्हीं के मतलब छतरी के नीचे ये पाबंदियों वाले काम भी हो रहे होते हैं, हलाकतें भी बाजुकात होती हैं, बारूद फटता है पटाखों का और परख्चे उड़ जाते हैं लाशों के बाजुकात, कपड़ों में आग लग जाएगी, कोई जा रहा है उसके आग जाएगी, किसी की आंख में ये उड़ के लगेगा तो क्या क्या होता है। अच्छा, इसी तरह हमारे यहाँ पतंग का भी रवाज है, खास इसके भी सीजन आते हैं, पतंग भी बच्चों की गर्दनें काट देते हैं। जी हाँ, बाज़ ये भी हादसा इस तरह के हमारे यहाँ हुए हैं। पतंग का मांझा जो होता है ना, ये बड़ा तेज होता है, तो कांच का चूरा होता है, कांच का चूरा, और इससे एक मखसूस तरीके पर इसको मतलब बनाया जाता है। ये बिल्कुल तेज होता है, जब भी तो धागा काटता है ना ऊपर जाकर पतंग का, तो ये गला भी काटता है, कभी बाजू काटता है, तो जख्मी कर देता है, कभी जान ले लेता है मांझा इसी गर्दन में। अगर ये तेज उड़ती हुई पतंग अचानक उसके गर्दन पे अगर लग गई ना तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। और ऐसे वाकयात आए दिन नहीं तो बहरहाल अपने मुल्क का तो मुझे पता है कि ऐसे वाकयात कई हुए हैं कि जिनमें मतलब लोगों को या तो जख्मी हुए या जान से बच्चे जो, क्योंकि इनका वजूद नाजुक होता है, कमज़ोर होते हैं, तो ये जल्दी इसको कट लगता है। ये बेचारे मतलब माँ लेकर जा रही है, बाप लेकर जा रहा है, स्कूटर पर सवार है बच्चा, बेचारा वो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। अरे पतंग उड़ाना ये भी शरीयत में इसकी भी तो ममानत ही है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये सब हो रहा होता है। अल्लाह पाक हमारी भी हिफाजत करे, हमारे बच्चों को भी हिफाजत करे। हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि अब ब्लीच पी लेते हैं, तेजाब पी लेते हैं, एसिड पी लेते हैं बच्चे, ये तो कई केस सुने होंगे आपने। तो ये डॉक्टर साहब ने बताया था इसका तो कि ये लिक्विड पीते हैं बच्चे, बेहतियाती से घरों में रखे होते हैं। अच्छा, फिर बनाने वालों का भी अल्लाह भला करे, उनका जहन ये होता है कि खूबसूरत होगा तो बिकेगा। तो सर टेक्निकल या रंगीन मतलब वो बोतल में होता है कि बिल्कुल ये कि शरबत लगता है, आदमी देखे तो मुंह में पानी आ जाए कि ये दूध का गुलाबी शरबत रखा हुआ है, और होता वो बहुत खतरनाक है। तो बड़ा तो फिर भी हाथ रोक लेगा, बच्चा उसके हाथ में आया तो गया। अच्छा, दवाओं के उसमें भी लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखे, लेकिन बहरहाल दवाएं भी बच्चों के हाथ आ ही जाती है कि बाप पीता है, माँ पीती है, तो कोई अच्छी चीज़ तो मुझे मना करते हैं, मुझे रोकते, फिर उसने छुप कर पीना है, फिर आपको सब्र का घूंट पीना पड़ेगा। यह कि आप ने मतलब ये बेहतियाती की और बच्चे ने आपको रुलाया। अल्लाह पाक हिफाजत करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम।
یہ قصیدہ کن بزرگ نے لکھا ہے اور ان اشعار کے بارے میں کچھ بتائیے۔ سبحان اللہ، یہ قصیدہ بردہ شریف مشہور ہے اور ہمارے یہاں مطلب ہے کہ ہر زبان والے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی پڑھا جاتا ہے، حالانکہ ہمارا ملک جو ہے نا اس کی قومی زبان اردو ہے، عربی سمجھ میں نہیں آتی لیکن لوگ پڑھ کے جم رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس قصیدے کا اصل نام جو ہے نا الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قصیدہ پاک جو ہے قصیدہ بردہ شریف، اس میں ایک برد یمانی کا تذکرہ ہے، یمن شریف کی چادر کا، اس کا پورا قصہ ہے۔ اچھا، تو یہ قصیدہ بردہ یوں مشہور ہوا ہے۔ تو قصیدہ بردہ جو ہے ایک قول کے مطابق 161 اشعار پر مشتمل ہے، 161 اس کے اشعار ہیں، شعر ہیں۔ اور یہ حضرت سیدنا امام شرف الدین محمد بوصیری رحمت اللہ علیہ نے صدیوں پہلے لکھا تھا۔ آپ کی وفات شریف ہوئی تھی 696 ہجری میں، 696 ہجری سن، جبکہ اب ہے اس وقت 1444 سن ہجری، یہ تقریباً 750 سال ہو گئے، 750 ایئرس آپ کے مطلب ہے کہ اس قصیدے کو اور ان کی وفات کو ہو گئے 750 سال، اور یہ مقبول ہے، اس کو اللہ نے بڑی قبولیت بخشی ہے۔ عربی میں یہ سب سے مشہور قصیدہ بردہ ہے، اور بھی قصائد ہیں عربی کے، لیکن اس کو اللہ نے بڑی مقبولیت اور شہرت دی کہ بچوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ یہ اپنے دور کے ممتاز عالم دین تھے، جبکہ فصاحت و بلاغت میں یہ اپنی جگہ پر سمجھے ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کا واقعہ یہ کہ حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کو فالج ہو گئے، پیرالائز ہو گئے، انہیں کہا ہاف باڈی جو تھی آپ کی یہ پیرالائز ہو گئی، فالج مفلوج ہو گئی، اور آپ چل پھر نہیں سکتے تھے، بس پڑ گئے۔ اس دوران آپ نے سوچا کہ میں چلو بارگاہ رسالت میں کچھ عرض کرتا ہوں، اشعار لکھتا ہوں، تو انہوں نے یہ قصیدہ بردہ شریف فالج کی کیفیت میں لکھی، اور یہ نیت تھی کہ یہ لکھوں گا اور پھر اس کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک مجھے شفا دے دے۔ تو میں نے وہ قصیدہ لکھ لیا، جب قصیدہ میں نے پورا کر لیا، کمپلیٹ کر لیا، تو میری قسمت جاگی، اور جن کی شان میں نے قصیدہ لکھا وہی آقا سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ میں نے خواب کی حالت میں ان کو پورا قصیدہ سنا دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصیدہ سنایا، اور قصیدہ سننے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ طبیبوں کے بھی طبیب ہیں، انہوں نے میرے بدن پر اپنا مبارک ہاتھ، میری باڈی پر اپنا مطلب ہینڈ جو تھا، ہولی ہینڈ، مبارک ہاتھ یہ پھیرا، تو اس دستے شفا کے میرے ہاتھ بدن پر پھرنا تھا کہ بس کرم ہو گیا، اور مجھے اپنی چادر بھی اڑا دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ وہی یمن شریف والی چادر تھی، برد یمانی جس کو بولتے تھے۔ تو خیر یہ چادر اڑا دی، اور جب میری آنکھ کھلی تو بس میں بالکل صحت مند تھا، میرا فالج پیرالائز جو بھی مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور میں اپنے پاؤں پہ چل رہا تھا۔ اچھا، پھر میں نے مزید اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ دن کے وقت حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ وہ سرکار کی عطا کردہ جو چادر تھی، برد یمانی، برد مانے چادر، تو یمن شریف کی چادر،
सरकार ने जो मुझे अता फरमाई थी, मैं वो चादर ओढ़ कर, मुझे बिल्कुल, मैं जागा तो चादर मेरे पास थी, ख्वाब में दी हुई चादर बिल्कुल बेदारी में जागते में मेरे पास थी। मैं वो ओढ़ के जा रहा था तो मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, शरफुद्दीन, या शरफुद्दीन। मैंने वो पलट के देखा तो कोई दरवेश था, कोई सादा सा आदमी था। उसने कहा कि वो रात को जो आपने कसीदा कंप्लीट किया है, इसकी एक कॉपी मुझे दो ना। चौंका, मैंने कहा मैंने तो रात को कसीदा लिखा है और अभी बाहर निकला हूं, मैं तो बीमार था और मैंने तो किसी से तस्करा नहीं किया इसका, आपको पता कैसे चला? तो उन्होंने कहा क्यों छुपाते हो? जब सरकार को सुना रहते हैं ना रात को ख्वाब में, तो वहां मैं भी मौजूद था उसमें फिल्म में, मुझे कॉफी दे दो। तो ये मतलब बड़ों की बड़ी बातें होती है। अल्लाह की बुलंद शान है और उसने अपने प्यारों की भी शानों को बुलंद किया। बूसेरी मुबारक हो तुम्हें बुर्द यमानी, बूसेरी मुबारक हो तुम्हें बुर्द यमानी, खैरात मिली खूब दरबार नबी से, खैरात मिली खूब है दरबार नबी से, दरबार नबी से खैरात मिली खूब दरबार नबी से, खैरात मिली खूब दरबार नबी से, दरबार नबी से। तो बुजुर्गान दीन ने इस कसीदे बुर्दा शरीफ की बरकतों पर किताबें लिखी हैं, इनकी शुरूआत लिखी है, इजाजतें मशाइख में चली आ रही हैं, इजाजत लेते हैं बुजुर्ग एक दूसरे से और इसको पढ़ते हैं। तो बुजुर्गों की इजाजत से जब पढ़ेंगे तो इजाजत वो दे सकता है जो खुद साहिब इजाजत हो, जिसको इजाजत मिली हो, तो वो आगे फिर फायदे बढ़ जाते हैं इसके। तो यहाँ तक के इसकी बरकतों के जिक्र किए कि मसलन फुला शेर पढ़ो इतनी इतनी बार तो जबान की लुकनत अकलाट होती है जो अटक अटक के बोल, तो ये दूर हो जाएगी। तो किसी में ये कि अगर दमे का मरज है, सांस का मरज, तो वो दूर हो जाएगा, फुला शेर पढ़ो। तो ये कि आसेब है, जिन्नात का असर है, तो ये फुला शेर का विरद करो, पढ़ो, तो ये दूर हो जाएगा। तो उसके तादादें, पढ़ने के तरीके, तो लिख कर पहनने के तरीके बुजुर्गों ने, तो इस कसीदा बुर्दा शरीफ और जितनी शुरुआत लिखी गई हैं, जितनी किताबें लिखी गई हैं और जितना ये आम हुआ है, वो 750 साल हो गए। ये मैंने और किसी कसीदे के बारे में ना पढ़ा ना सुना जिसको इतनी मकबूलियत हासिल हुई हो। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये कि अगर इसकी मालूमात आपको मजीद चाहिए तो मकतबतुल मदीना ने किताब शाये की है उर्दू में, कसीदा बुर्दा से रूहानी इलाज। इसके पेज ओनली 22 पेज। कसीदा के अशार तो अरबी में लिखे जाते हैं, ताहम उसके फवाइद ये उर्दू में, ताकि वो उर्दू समझने वाले जो इसको पढ़ें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारे जुम्मे की नमाज के बाद आलमी मदनी बरकत फैज़ान मदीना में पाबंदी के साथ सलातो सलाम का जो पीरियड होता है, दुरूद शरीफ पढ़े जाते हैं। सलातो सलाम से पहले ये कसीदा बुर्दा शरीफ के भी चंद अशार पढ़े जाते हैं। यह आज से नहीं, बरस हा बरस से हमारे यहाँ इसका मतलब मामूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बरकत वाला कसीदा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला शफाअतुहु वल हबीबुल लज़ी
شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی جی یہ ارشاد فرمائیے کہ ہاتھ مبارک کی برکت سے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو شفا ملی، ان کا بدن درست ہوا، تو اس طرح کے کیا کوئی اور بھی واقعات ہیں کہ جن میں ہاتھ مبارک کی برکت سے اس طرح تندرستی مل جائے، مزید اعتقاد کے اندر پختگی پیدا ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تو خود قرآن کریم میں ذکر ہے کہ آپ برس والوں کو مبروس، جس کو ہم کوڑ بولتے ہیں، سفید داغ ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہاتھ پھراتے تو شفا ہو جاتی، دعا کرتے شفا ہو جاتی۔ مادرزاد اندھے، ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی بلائنڈ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، عمر کے حساب سے یا کوئی سا اس کے ساتھ ایکسیڈنٹلی، یا شوگر ہو جاتا ہے ہائی، جمپ کر جاتا ہے اور بلائنڈ ہو جاتا ہے آدمی، یہ تو ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کہ جو پیدائشی اندھا، پیدائی وہ نابینا ہوا، تو پیدائشی نابینا جو ہے نا، اس کا یہ بتا دوں علاج نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ باقی بیچ میں جو نابینا ہو جاتے ہیں، بلائنڈ ہو جاتے ہیں، اس کا علاج ہو جاتا ہے، بارہا نہیں بھی ہوتا، ہو بھی جاتا ہے۔ تو اس کا پیدائشی نابیناؤں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، دعاؤں سے شفا مل جاتی تھی، اور اس میں مطلب قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے بھی اسے ذکر فرمایا، جو کچھ ان کو معجزات عطا ہوئے، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ آپ علیہ السلام پرندہ، مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونکتے تھے، اور فرماتے تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا بن جاتا، پرندہ بن جاتا۔ وَأُبْرِهُ الْأَكْمَى وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کے مرض والے کو شفا دیتا ہوں، ٹھیک کرتا ہوں، اور مردوں کو جلاتا ہوں، اٹھاتا ہوں اللہ کے حکم سے، یعنی بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی بعض آیتیں ہیں، یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے، خوفناک جادوگر، جس میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات وغیرہ کا ذکر ہے، اس میں بھی یہ آیات مبارکہ وہ لکھی ہوئی ہے۔ ایمان تازہ ہو جائے گا، یعنی یہ وسوسہ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، یہ نکل جائے گا۔ شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے۔ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دو، فلاں ڈاکٹر نے ایسی دوا دی، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ بھئی کیسے ٹھیک ہوا تمہارا بچہ؟ وہ اس ڈاکٹر کے علاج سے۔ یہ بولنے دیتا ہے شیطان، جہاں اللہ والوں کی بات آتی ہے وہاں لگام کھینچتا ہے، اور بعض لوگ اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآنی آیتیں موجود ہیں کہ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈاکٹر کو یہ سوچ دے سکتا ہے، وہ دوائیں ایجاد کرتے ہیں، وہ دوا کرتے ہیں، پھر شفا ملتی ہے، تو شفا تو ایکچولی تو اللہ دیتا ہے، لیکن یہ کہ ڈاکٹر کو یہ ایک صلاحیت بخشی گئی کہ وہ علاج کر لیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے وہ پاورز ملیں، اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں، تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی شفا دے سکتا ہے مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے، تو اس لیے وہ بالکل
اس طرح کے وہم میں آنا نہیں چاہیے. کوئی وہم میں ڈالے تو اس سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے. اپنے بس ذہن بنا لیں کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ حق ہے اور جو علماء اہل سنت فرماتے ہیں وہ درست ہے. بس اب کسی اور چکر میں آپ نے پڑھنا نہیں، ورنہ شیطان ایمان نکال لے گا، پتہ نہیں چلے گا. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. ابھی جس رسالے کا تذکرہ ہوا خوفناک جادوگر، تو مکتبۃ المدینہ سے یہ اونلی 10 روپیز میں یہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس میں بھی ہیں یہ آیتیں اور اس میں بھی کچھ اس طرح کی آیتیں ہیں. اپنے جنات کا بادشاہ غالباً اس میں بھی. جی ماشاء اللہ. ہاں تو یہ آیتیں چھوٹے چھوٹے رسالوں میں شامل کی ہیں مکتبۃ المدینہ کی جو چھپتی ہیں، تو اس سے آسانی سے مطلب امید ہے کہ آپ اپنی وہ ترکیب آپ کی بن جائے گی. یہ پھر حدیثیں بھی ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری جلد 2 پیج نمبر 577. تو اس حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے، یعنی اس عمارت سے گر پڑے، بلڈنگ سے، تو جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا وہ مطلب ٹوٹ گیا. اور پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ جو ابو رافع کا تھا وہ سنا قتل کا، اور پھر ان کی جو پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، دست شفا دینے والا ہاتھ. اللہ کی رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے میں شفا ہے. تو مبارک ہاتھ پھیر دیا تو وہ ٹوٹا ہوا جو پاؤں مبارک تھا وہ فوراً جڑ گیا، اور ایسا سیٹ ہوا وہ پاؤں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ پاؤں کچھ دیر کے پہلے زخمی تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اس میں کوئی چوٹ بھی لگی تھی. ایسا ہو گیا. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی مطلب قوتیں طاقتیں حاصل ہیں. ربی خواب میں آ کر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے لیے مطلب یعنی کہ وہ اس کی شفا کا سامان کرتے ہیں. کئی واقعات بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ مریض مر رہا ہے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، طبیب جلد آنا، طبیب جلد سنت بڑے عاشق رسول ہیں، اور آپ کے کلام کا تو جواب نہیں ہے. امام الکلام، کلام الامام، یعنی میرے آقا اعلی حضرت جو ہمارے امام ہیں، ان کا جو کلام ہے یہ جو اور شعراء ہیں ان کے کلاموں کا امام ہے. یہ کلام ان کا امام ہے کلاموں کا. کیا مراد یہ امام الکلام سے کلام الامام. اچھا، تو انہوں نے ایک شعر بڑا پیارا لکھا ہے. تو ہر خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، ہر خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، معجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں. یہ خطی لکیر کو بولتے ہیں. لکیریں جو نا، کف مانے ہتھیلی، یہ ہتھیلی کی جو لکیر ہے نا، تو یہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام مبارک ہاتھ ڈالتے تھے اپنی جیب میں تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ اے حضرت موسیٰ کے ہاتھ، تو پورا روشن ہوتا تھا. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کہ
کہ آپ کے مبارک ہاتھ کی ہر لکیر جو ہے نا وہ روشن ہے، اور مطلب اس سے نور کا دریا موجزن ہے نا. اور جب یہ کہ لکیر کا یہ عالم ہے کہ اس سے نور کا دریا بہہ رہا ہے، روشنی اتنی اس سے نکل رہی ہے، تو خود پوری ہتھیلی پھر پورے مبارک ہاتھ کی شان کیا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں یہ بیدا کے صدقے اے کلیم، میں یہ بیدا کے صدقے اے کلیم، پر کہا ان کے کفے پاکا جواب، پر کہا ان کے کفے پاکا جواب. تم سے اس بیمار کو صحت ملے جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب. تم سے اس بیمار کو صحت ملے جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب. اور سر سے پا تک ہر عطا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب. صلو علی الحبیب. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو غیر مہذبانہ عادت بن جاتے ہیں، اسی طرح کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو عادت بن جاتے ہیں. تو اب ان گناہوں سے چھٹکارا پانے کا کیا طریقہ ہے، ان گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ اللہ اس کے لیے ظاہر علم ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ گناہ ہے، اور جو یہ علم وہ ہیں جو فرض علم ہے. گناہوں کے بارے میں معلومات ہونا یہ فرض ہے، ان کو مولکات بولتے ہیں. مولکات، مولک کی جمع ہے، مولک مانے برباد کرنے والا، ہلاک کرنے والا. یہ ہلاک کرنے والی جو دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں معلومات کی جاتی ہے نا. یہ بھی جیسے ابھی ہم نے بیان کیا بچے اس طرح خطرے میں پڑتے ہیں ہے نا، یہ مولکات کا ہی بیان تھا، مگر یہ کہ ایک دنیاوی اعتبار سے. تو جو مطلب ہے کہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر انسان کو ہلاک کرتے ہیں، تو ان کی معلومات بھی یہ رکھنی ہوگی، اور یہ فرض علوم میں سے فرض علم ہے. یہ تو جب گناہ کا پتہ چلے گا کہ یہ گناہ ہے، تب بچنے کا ایک ذہن ظاہر کہ بندہ بنائے گا. پتہ ہی نہیں ہے، کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے کہ یہ گناہ کرے. اب جیسے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، پتہ کہاں ہوتا ہے کہ میں غیبت کر رہا ہوں، علم نہیں ہے نا اس کا. بارہا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی جھوٹ ہے، حالانکہ جھوٹ ہوتا ہے. اسی طرح یہ سود کی کئی صورتیں ایسی ہیں کاروبار میں، بزنس میں، کہ تاجر کو، بیپاری کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ انٹرسٹ ہے، یہ سود ہے. اس لیے وہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو حلال کھا رہا ہوں، حالانکہ وہ حرام کھا رہا ہوتا ہے. اسی لیے ان چیزوں کا سیکھنا فرض ہے تاکہ پتہ بھی چلے نا تو بچے گا نا آدمی. اس طرح اگر اور ہم معاملات میں لیں نا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ ہوتی مسعود ہے یا رشوت ہوتی ہے. رشوت کی بھی اتنی صورتیں ہیں، کئی جگہ پر ہم ایک دوسرے کو بعض اوقات رشوتیں دے دیتے ہیں، رشوتیں لے لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے رشوت. مثال کے طور پر کوئی سرکاری افسر ہے یا کوئی کسی اسمبلی کا ممبر ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ہے، اس کی کسی نے خصوصی دعوت کی، پہلے نہیں کرتا تھا، اب اس نے دعوت کی. یہ تو مزے سے جائے گا، اجرک اوڑھ کے نکلے گا، پھر اجرک ملے گی، صاحب وہ کوئی باکس ملے گا تحفے میں، ہے نا، ملتے ہیں نا یہ چیزیں. یہ کیا ہے نا، یہ رشوت ہی تو ہے.
अगर ये साहब ओहदेदार ना होते, अफसर ना होते, या असम्बली के कोई मेंबर ना होते, इनको किसने भाव पूछना था, किसने घास डालना था, पानी भी नहीं पिलाते। SHO साहब गुजर रहे हैं, साहब आइए वो करके ठंडी बोतल दी करके आधी रख के SHO साहब सरक गए। व्हाट इज दिस? रिश्वत दी तो है। क्यों पिलाई आपको? जो दूसरा गरीब गुजरा उसको तो पानी मांगा तो बोला नहीं है, और ये निकला तो जबरदस्ती बिठा करके कल काम आएगा। तो जिसको कोई कहरो तसल्लुत हासिल हो ना, ये कल मेरा काम बना सकेगा तो काम से मैं निकलवाऊंगा या जो भी, तो इस तरह मतलब ये कि एक मुबल्लिग थे दावत इस्लामी के, वो थाने में थे पुलिस में, और असलहे का लाइसेंस उनकी साइन के बगैर असलहा इशू नहीं होता था। पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वो मुबल्लिग थे हमारे, दाढ़ी भी थी, मामा भी बांध लेते थे, तो इनसे मैं बड़ा मुतासिर था। ये मतलब कोई चाय भी पिलाता था ना, नहीं पीते थे। अल्लाह, कोई मुझे पानी भी नहीं पिलाएगा, ये इसीलिए पिलाते हैं, नहीं पीते थे चाय, ये रिश्वत। ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज, ये बहुत मशहूर बुजुर्ग हुए और इस्लाम के पहले मुजद्दिद, और खिलाफत राशिदा में इसको उलमा ने शुमार किया, इनकी खिलाफत को। इतनी मतलब, और ताबेई बुजुर्ग थे, सहाबा किराम की जियारत की थी इन्होंने। तो ये कहीं तशरीफ ले गए थे, तो वहाँ कुछ बच्चे सेब का तबाक, सेब लेकर कोई मतलब है कि खड़े हुए थे पेश करने के लिए। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज, आप अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा थे, तो आपने मना किया, मैं नहीं लूंगा। तो आपके जो साथ थे वो ताज्जुब किया कि हुजूर ये क्या तोहफा लेना सुन्नत नहीं है? फरमाया तोहफा लेना वाकई सुन्नत है, ये तोहफा नहीं है, ये रिश्वत है। ये मुझे, ये क्यों ये लेकर खड़े हुए हैं और क्यों खड़ा किया गया, मुझे क्यों दिया जा रहा है? नहीं, मैं इसके अपने तौर पे कह रहा हूँ कि जो और साथ थे खलीफा हजरत अमीरुल मोमिनीन, उनको क्यों नहीं दे रहे थे, मुझे क्यों दे रहे हैं? तो बोला ये कि अब जो ये मिलते हैं ना ये हुक्मरानों को, इसे तोहफे नहीं होती, रिश्वतें होती हैं, इन लोगों को काम निकलवाने होते हैं। ये बुखारी शरीफ में ये इनकी हिकायत है। ये जो वाकया स्टोरी जो मैंने सुनाई ना, तो यूं मतलब ये कि वो दौर, ताबेइन का दौर तो बहुत उम्दा था। सहाबा किराम का दौर फर्स्ट, सेकंड बेहतरीन दौर ताबेइन का, इसके बाद तबे ताबेइन का। सहाबी उसको बोलते हैं कि जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद, मतलब ईमान पर रुखसत हो, वो ज़ाहिरी हयात में कुछ सोबत मिल जाए या आपकी ज़ियारत कर ले। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर हयात थे, जिंदा थे, अब भी जिंदा है, लेकिन अब की ज़िंदगी, क्योंकि हमारे दरमियान हमको नज़र नहीं आ रहा है, पर्दा फरमा दिया। जब पर्दे से बाहर थे तो जो यानी ईमान लाए और इसके बाद यानी कि ईमान पर रुखसत हो, या ये कि जैसे कि आंखें नजर नहीं आ रहा, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह, उन्होंने आंखों से नहीं देखा, ये सोबत पाई, तो एक लम्हे की भी सोबत ईमान के साथ पाई और ईमान पर रुखसत हुआ, तो वो सहाबी। अच्छा, इसी तरह वो ताबेई, वही के ईमान के साथ जो मतलब है कि किसी सहाबी की सोबत हासिल कर ले और फिर ईमान पर दुनिया से चला, ताबेई। इसी तरह ताबेईन की सोबत में रहने वाला तबे ताबेई। तो ये तीनों दौर जो ने, ये कुरून सलासा कहलाते हैं। ये बड़े सुनहरे दौर थे। इस दौर में गुनाह कम होते थे, नेकियां ज्यादा होती थी। फासिकीन की, मुफसिदीन की, शरीरों की तादादें कम थी। सहाबा में तो सब के सब आदिल हैं, सहाबा में तो कोई यानी कि गुंजाइश ही नहीं है कोई कलाम करने की। ताबेईन में गुनाह होते थे लेकिन इतने नहीं जितने अब हो रहे। तबे ताबेईन में भी इतने नहीं होते थे। बाद में जो है ना फिर फसाद आ गया और अब तो इतना के पता ही नहीं चलता गुनाह हो रहा है।
बात बात पे गुनाह। गुफ्तगू करें 5 मिनट की गुफ्तगू, क्या अगर कोई स्कैनिंग करे ना तो इसमें 1-2 गीबत पकड़ लेगा, बदगुमानी पकड़ लेगा, कोई झूठा मुबालगा, तो कुछ इसमें निकल आएगा। नीयत का फसाद अलग है, निफाक अलग है कि हम जबान से कुछ कह रहे होते हैं और दिल में कुछ होता है। आइए, बड़े दिन के बाद तशरीफ लाए, आंखें तरस गई आपके दीदार को और दिल में कि यार ये कहाँ टपक पड़ा। एक तो वैसे पहले से देर हो गई थी मुझे ड्यूटी पर पहुंचना यार, लेकिन इतना मुस्कुरा कर इसको वेलकम कर रहे कि ये समझे कि मेरे घर वालों से भी ज्यादा ये मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन हालांकि वो निफाक में मुब्तला है, वो खाली खाली वो बातें कर रहा है और दिल से ही आपसे नफरत करता है कि आप मिले ही क्यों मुझसे। ये हालत है हमारी। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सैयदों के सरताज हैं, है ना, तो ये गोशानशीन हो गए थे हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े वलीउल्लाह हुए। ये मतलब इनकी बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि आप तो सैयदजादे हैं, अहले बैत हैं, आप इस तरह कोने में जाके बैठ जाएंगे तो हम लोगों को नसीहत कौन करेगा। तो आपने इरशाद फरमाया कि हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन इनके दिलों में बुग़्ज़ के बिच्छू भरे हुए। एक शेर अरबी का इन्होंने कहा, इसका मैं आपको मफ़हूम बताता हूँ। तो ये हालत, ये उस दौर में, ये हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ताबेई थे, है ना, ये सहाबा की सोबत इन्होंने उठाई थी। तो ये मतलब उस दौर की बात कर रही है। अब तो कुछ पता ही कुछ नहीं है लोगों को। सही बात है कि सही मानों में कलमा पढ़ना भी नहीं आता बहुत सौ को, लेकिन इस मुसलमान है और कलमे का तलफ़ुज़ नहीं अदा कर सकता तो मुसलमान ही है। ये नहीं कहेंगे कि इसको पढ़ना नहीं आता तो मुसलमान नहीं है। एक बात बता रहा हूँ कि वाकई हालत ऐसे हैं, इसलिए वो गुनाहों की मालूमात करें तो गुनाहों से बचें, सीरियस लें। सीरियस नहीं लेते तो गुनाह से फिर जान नहीं छूटती, इजी लेते हम लोग। तो सीरियस लें कि ये गुनाह अगर हो भी गया तो इस पर भी आदमी अपना मतलब है ना दिल जलाए अच्छी तरह कि वाह, तौबा तो करे, तौबा करने पर भी सोचता रहे, क्योंकि तौबा के लिए कोई मतलब हमारे पास ऐसा आला नहीं है जो 100% हमको मुतमईन कर दे कि ये गुनाह हमारे नामे अमल से अब ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। ऐसा 100% अपना जहन न बनाए। हज़रत अतबतुल गुलाम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे। एक बार किसी मकान के पास से गुजरे तो गिरकर बेहोश हो गए। लोगों ने जब कोशिश की, होश में आए, हुजूर क्या हो गया? बोले यहाँ ये मकान देखकर मुझे याद आ गया कि कभी बचपन में मैं इसमें रहा करता था तो मुझसे ग़ीबत हो गई थी, तो मुझे याद आ गया कि यहाँ मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है। ये बड़ों की बड़ी शानें हैं। हम लोग तो दिन रात ग़ीबतें कर रहे होते हैं और सबका मजाक उड़ा रहे होते हैं। किसी के लिबास की ग़ीबत, किसी स्कूटर में कोई आवाज़ निकली, ये तो खटाड़ा ये गाड़ी, ये तो बाबा आदम के वक्त की है। इस तरह लोग बोलते हैं। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनके वक्त की जो भी चीज़ थी, अल्लाह करे कि इनके कदम जहाँ लगे उस कदम की धूल मिल जाए तो खुदा की कसम बेड़ा पार हो जाए। मैं अवाम की बात, अवाम बोलते हैं इस तरह की बातें, तो मजाक उड़ाते हैं, हर एक का मतलब मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे किसी पर, किसी को हकीर जानेंगे और बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तकब्बुर ये वो। तो अल अवाम कल अनआम, अवाम चौपाइयों की तरह हो गई है। ये जनरल बात करता हूँ, उलमा इससे मुस्तस्ना है, सालिहीन मुस्तस्ना है, जो नेक लोग हैं ये इससे अलग हैं। जनरल बात कर रहा हूँ। हालात बहुत बिगड़ गए, नेक बहुत कम हो रह गए, गुनाहगार इस वक्त ज़्यादा हैं, फासिकीन की तादाद ज़्यादा है, गैर फासिक बहुत कम रह गए हैं। नमाजों को देख लें, यानी कि इस वक्त शायद अपने मुल्क की बात करूं तो मेरा ख्याल है कोई 2-3% मुसलमान नमाज पढ़ते होंगे। चलो हम 5% ले लेते हैं, 5% पाकिस्तानी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, चलो हम ये ले लेते हैं।
95% नमाज छोड़कर फासिक हुए या नहीं हुए? तो नमाज छोड़ना, एक नमाज जो जानबूझकर छोड़ दे तो उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो गुजर कर जहन्नम में दाखिल होगा। एक नमाज, यहाँ तो नमाज पढ़ना ही नहीं है। एक तादाद है जुम्मा पढ़ लेती है, अच्छा वो ऐसी भी तादाद है खाली ईद पढ़ते हैं, और ऐसे भी मिलेंगे जो ईद भी नहीं पढ़ते। एक हम जब दावत इस्लामी का काम शुरू हुआ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी इसको पर लगे थे, लोग आ गए थे नमाज की और हमने दावत दी ना, तो एक इस्लामी भाई, और मेरे लिए ये माजी की याद है, वो ऐसी इस बात लिख दी कि लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, तो ये रो पड़ा था। उसने रोते हुए मुझे कहा कि मैं वो हूँ कि मैंने कभी भी अंदर से देखा नहीं था कि मस्जिद होती कैसी है। ये दावत इस्लामी ने मुझे नमाजी बनाया। मस्जिद कभी गया ना, जुम्मे ना ईद, कभी मस्जिद में गया ही नहीं था मैं। अल्लाह पाक करम फरमाए। तो बहरहाल ये गुनाहों से सच्ची तौबा करें और गुनाह नहीं करने ये ज़हन बनाएं, इस पर इल्म भी हासिल करें, तो इंशाअल्लाह ये क्या तरकीब बनेगी। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ताबेई बुजुर्ग थे। आपने दो जलीलुल क़द्र सहाबा किराम हजरत अनस बिन मालिक और हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इन दोनों सहाबा की ज़ियारत की। आपसे आपके शहजादे हजरत इमाम मूसा काजिम, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, हजरत सुफियान सौरी और हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने फैज़ पाया। तो यूं इमाम जाफर सादिक ताबे बुजुर्ग थे। दो सहाबा की आपने ज़ियारत की है। इनके दौर में हालत जो इन्होंने बयान की, घर मतलब कोने में बैठ गए थे, अब तो सूरत हाल जो भी हमारे सामने, जहाँ बाहर निकले तो बदनिगाही, बदकलामी, हर तरफ बेपर्दगी और गुनाहों का दौर दौरा है, जो मतलब कहो वो कम है। ये हालत हो गई है, खौफ खुदा उठ गया है। अल्लाह हमको अपना हकीकी खौफ नजर अता फरमाए। तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा, तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूँगा। सदका गुनाहों से हर दम बचाया इलाही, गुनाहों से हर दम बचाया इलाही। SMS के ज़रिए एक सवाल है, अगर मगरिब की नमाज में मस्जिद में जाएं और 2 रकत निकल गई, फिर इमाम की नमाज के बाद अपनी जो 2 रकतें पढ़नी हैं वो कैसे पढ़ेंगे? दोनों भरी भी पढ़ेंगे, सूरह फातिहा और सूरतें भी पढ़ेंगे, और 1 रकत पढ़कर बैठेंगे, कादा करेंगे, अत्तहियात तो पढ़ेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर सूरह फातिहा और सूरत मिलाकर ये पढ़ के, फिर अब ये आखिरी कायदा है, अत्तहियात तो दुरूद इब्राहिम दुआ पढ़ के सलाम फेर दें। एक और सवाल है, मुसाफिर इमाम ने भूले से 4 रकतें पढ़ा दी, अब पीछे जो मुक्तदी थे वो मुकीम थे,
تو کیا جو مقیم تھے غیر مسافر جو نہیں تھے کیا ان کی نماز ہو جائے گی اور امام صاحب کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی ذرا تفصیل بیان فرما دیں۔ مسافر امام نے 4 رکعت نماز پڑھا دی اور ان کے پیچھے مقیم مقتدی موجود تھے، تو مسافر امام نے اگر بھولے سے 4 رکعت نماز پڑھا دی اور 2 کے بعد قاعدہ کیا تھا، تو ان کی یعنی امام مسافر کی وہ نماز ہو جائے گی اگر وہ اس کا سجدہ سہو بھی کر لیتے ہیں، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اس امام کو بھی اپنی نماز واجب الاعادہ ہے۔ جہاں تک سوال ہے ان کے پیچھے مقیم مقتدی تھے، تو جیسے ہی مسافر امام 2 رکعت کا قاعدہ کرنے کے بعد تیسری کے لیے کھڑے ہوئے، تو چونکہ ان کی آگے نفل نماز شروع ہو گئی تھی اور پیچھے جو افراد تھے وہ فرض والے تھے، تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو لہذا جو مقتدی تھے یعنی مسافر امام کے جو مقتدی تھے، ایسی صورت میں ان کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، سرے سے ہی نماز ان کی پڑھنی ہوگی۔ ان کی نماز باطل ہوئی اور اس امام کی نماز ہو جائے گی اگر انہوں نے بھولے سے 4 پڑھی اور 2 پر قاعدہ کیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نفل نماز اور سنت کی نماز میں قیام کرنا فرض ہے یا نہیں؟ فجر کی سنتیں جو ہے نا ان میں اور فرض میں اور واجب نمازوں میں تو قیام فرض ہے، باقی سنتوں اور نفل میں فرض نہیں ہے قیام۔ تاہم یہ کہ نفل اگر بغیر عذر کے بیٹھے بیٹھے پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا، اس لیے بہتر یہ کہ وہ بھی کھڑے کھڑے پڑھے۔ یہی ہے نا مسئلہ، تو کھڑے ہو کر فرض اور واجب، اس میں وتر تو ہے ہی واجب، فرض واجب اور سنت فجر ان میں قیام فرض ہوتا ہے۔ قیام مانے کھڑا ہونا۔ پھر اس کے ضمنی اور مسائل ہیں کئی، کتنا کھڑا ہونا ہے، یا اگر اتنی طاقت ہے کہ صرف اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، ایسا مریض ہے تو اللہ اکبر بھی کھڑے کھڑے اس کو کہنا ہوگا۔ ہاں، جس کا سجدہ ساقط ہو گیا نا، سجدہ حقیقی، اگر وہ اس کا ساقط ہو گیا نا، معاف ہو گیا، وہ ایسا اس کا عذر ہے، ایسا مرض ہے، ایسی تکلیف ہے، تو اب وہ قیام اس کا معاف ہو جائے گا مریض کا۔ یوں اس کے مختلف مسائل ہیں، یہ بہار شریف کے 4تھے حصے میں اس طرح کے مسائل مل جائیں گے۔ حنفی فقہ کی وہ کتاب ہے۔ اپنے ناخن دانتوں سے جو کاٹنے کی جن کی عادتیں ہوتی ہیں، تو کیا اس سے تنگ دستی آ جاتی ہے؟ برس کا تو لکھا کہ اس کو کوڑ ہونے کا اندیشہ۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، حافظہ کیسے مضبوط ہو، اس کا نام ہے، اس کے پیج نمبر 181 پر ہے، دانتوں سے ناخن کاٹنا، دانتوں سے ناخن کاٹنا، اس کو نسیان کے اسباب میں شمار کیا گیا ہے، یہ لکھا ہوا۔ اب نسیان کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں۔ نسیان مانے بھولنے کی عادت، یہ حافظے کی کمزوری، میموری۔ تو میموری کمزور ہوتی ہے یہ ناخن دانتوں سے کاٹنے سے۔ برس بھی ہوتا ہے، وہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک نقصان ہے کہ اس سے میموری کمزور ہوتی ہے، یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ مزید لکھا اسی طرح بڑے اور میلے کچیلے رکھنے کو بھی، ناخن کو بڑے رکھنے اور اس میں میل بھرا ہوا رہنے دینے سے بھی مطلب ہے کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے، میں یہ سمجھ سکا ہوں، یہی ہے نا۔ ہاں، لیکن ہے یہ بڑی نامراد عادت ہے، اس میں میل کچیل سب پیٹ میں جاتا ہوگا، پھر یہ پیٹ میں بچے بھی یوں کرتے ہوتے کیڑے ہو جاتے ہوں گے پیٹ میں، پھر اور بیماریاں پیٹ میں پیدا ہوتی ہوں گی، تو پھر یہ معدہ خراب، معدے سے پھر سارے بدن میں یہ بیماریاں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ناخن کاٹنے کی عادت، اچھا یہ بچپن سے ہوتی ہے، پھر بڑے ہو کر بھی اگر
बचपन में नहीं निकाली ना तो बड़े होकर भी इसकी ये आदत जाती ही नहीं है। बड़े बड़ों को देखा है, इनको टोको भी ना तो मुस्कुरा के हटा लेंगे, फिर जब ये गफलत की चादर ओढ़ेंगे ना लगे होंगे। अभी कितने लगे होंगे, ये सुन भी नहीं रहे होंगे कि मैं क्या रहा हूं। इन्हें इतना बड़ा इसमें नुकसान हो रहा होता है जिसको कहते हैं ना दीन का ना दुनिया का, तो ये इतनी खराब आदत है। अगर मैं बोलूं ना छोड़ दो तो ये 2 हाथ उठा लेंगे, छोड़ दिए फिर लग जाएंगे। ये इतनी खराब आदत है ये, अब इसका हल भी क्या? क्या आपको लगता है कि ये बाज़ औक़ात किसी गौर फिक्र परेशानी गुमसुम जिसको कहते हैं, अब उसमें मतलब कि ये अब लगी है, अब हालांकि इसमें ना स्ट्रॉबेरी का टेस्ट है ना वनीला का टेस्ट है, कोई ऐसा टेस्ट तो है ही नहीं, लेकिन ये कुछ ऐसी आदतें होती हैं शायद कि आदमी गुमसुम होता है तो कुछ ना ऐसी हरकतें करता रहता है कि अपने को भी लगे कि यार ये लगता है इसको समझ नहीं पड़ रही है, इसको तवज्जो ही नहीं है कि मैं ये क्या जो कुछ कर रहा हूँ देखने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो बाज़ औक़ात जैसे कि इस तरह की हैबिट्स होती हैं, तो इस पर भी अगर आपकी तरफ से मद्दी फूल मिल जाए, जैसे बाज़ औक़ात नाक में उंगली डाल देना, कान में उंगली डाल देना, यूँ मत इस तरह की हरकतें लोग बैठे बैठे कर ही रहे होते हैं, तो शायद तवज्जो नहीं होती है, वो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं होते, क्या कहेंगे? इस तरह आने के बाद तो ऐसी आदतें होती है जो गंदी होती है, मतलब आदमी को घिन आती है। जी, कान में सबके सामने कान में खुजली होती है, लेकिन कान में उंगली डालेंगे फिर बातों का तो यार देख भी रहे होते हैं बहुत, मतलब इसी तरह नाक के साथ वो खेल रहे होते हैं। वो आदमी करे भी चलो तो अकेले में करे यार, सबके सामने तो कितना वो तकलीफ दे दूसरों के लिए, और बदन में मेल उतारते रहेंगे तो सबके सामने क्या कर रहे होते हैं, फिर ऐसी जगहों पर ये खुजा रहे होते हैं कि आदमी को शर्म आए। तो अब एक कल्चर एक और है हुजूर के, वो टूथपिक की जैसे खाने के बाद खिलाल जिसको हम कहते हैं, तो अब बाज़ वक़्त खिलाल ऐसा जैसे अब बोटी फंस गई, जैसे ना अपनों ने फंसाई हो, अब ये बोटी निकाला है और देखने वाले को भी अजियत दे रहा है ना, तो अब ये क्या तरीक़ेकार निकला है मैंने जो देखा है कि अब अगर जैसे कोई दांत में अगर किसी को कर रहा तो यूँ आगे हाथ रखते हैं ताकि वो अब मुंह में अब डालेगा टूथपिक तो मुंह भी यूँ खुलेगा और फिर दांत भी ज़ाहिर हो जाएंगे और हर दांत दिखाने जैसा नहीं होता। तो ये बात औक़ात ये होता है कि यूँ जो मिसवाक का इस्तेमाल हो तो इंशाअल्लाह ताला दांत भी दिखाने जैसे हो जाएंगे, लेकिन अब अल्लाह तौफीक देगा मिसवाक का इस्तेमाल करने वाले बन जाएं। तो ये मैनर्स आए हैं कि मतलब लोग यूँ कर रहे, लेकिन वो भी सबके सामने करना भी इतना ज़रूरी नहीं होता। ये सबके सामने करे तो पता है ना क्या कर रहा है, ये कर रहा है। फिर आपने बोला यार जरा प्याला उठा दो, तो उस उठाना तो आता नहीं है, यूं करके उठा देगा। अब वो आप क्या कर सकते हैं, आप ये बसी होती है। बाद वो ऐसी मजबूरियां होती हैं कि वो सामने वाला को समझाओ तो भी नहीं समझ रहे होते, इतनी वो घिन लाने वाली हरकतें कर रहे होते हैं। एक प्याला उठाने वाला बोला नहीं आता तो वाकई नहीं आता। ये जो मैंने उठाया ना, ये इसलिए नहीं उठाया कि मुझे अल्लाह करे आ जाएगा मुझे, ये उठाने का तरीका गलत है। गिलास प्याला इसी तरह उठाते हैं, ये इस तरह मौजब तरीका ही है। कोई भी बर्तन उठाएंगे ना तो वो जहाँ जिन हिस्सों में खाना खाया जाता है या पानी या जो भी मशरूब है लिक्विड पिया जाता है, उसमें हाथ उंगली लगाने से कोई तो होगा जो नफासत पसंद होगा, कोई तो होगा जिसको समझ पड़ती होगी और घिन आती होगी। बाकी हर एक को आए ये भी जरूरी नहीं घिन, लेकिन बाद होते हैं तबीयतें तो मज़ा नहीं आता उनको, तो वो मतलब वो सब कर रहे होंगे, यूं कर रहे होंगे, समझे, नाक में भी वो झाड़ू फिरा रहे होंगे और फिर यूं उठा कर आपको दे देंगे। ये बार वाले जो है ना, होटलों वाले, वो भी पानी का गिलास इसी तरह उठाते हैं। अब एक से ज्यादा गिलास है तो वो बात होगा, देखा कि पानी भरा हुआ होता है, उसमें उंगलियां डुबिंग यूं ला के टेबल पे रखा और टेबल ऐसी चमक रही है साफ सुथराई करके, हालांकि टेबल चमकाना जो है ना इनके हाथ को गंदा कर रहा होता है, और उसी से ही उठाकर आपको पानी में डुबिंग करके दे रहे होते हैं। तो बहुत बुरी हालत है यार। ना खाना मतलब पकाना आता है, ना खाना आता है, ना खाना निकालना आता है, ना बर्तन उठाना आता है, ना बर्तन रखना आता है। हम लोग बस ऐसे ही हैं, कुछ भी नहीं आता। खाना निकालते वक्त इतना बुरा असर करते हैं। अब इतनी दूर बर्तन है सालन का, ये निकाला यूं वो ड्रॉपिंग के ड्रॉप्स गिर रहे हैं,
शोरबे का ये आया इसमें, अच्छा फिर ये उठा के गए तो फिर टपक रहा है, ये जल्दी जल्दी और गिरा रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा फिर क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ ऊपर जो ढक्कन है ना, वो जो शोरबे से तरबतर जो भी वो चम्मच या कड़छी जिसको बोलते हैं या कड़छा जो भी है, वो उसके ऊपर रखते हैं। तो रहा सा शोरबा है, इस प्लेट को खराब कर रहा है, चलो प्लेट तो धुल जाएगी, जाया भी तो हो रहा है ना यार, हाजत क्या ऊपर रखने की। ये बिल्कुल उन्होंने 100% एहतियातन नहीं कहता, बाकी यही हालत है, ये ऊपर ही रखते हैं। अब आपने आप क्यों कहो तो पकाने वाला घर में नहीं होता, पकाने वाली होती है। अब कभी गौर से देखना वो क्या क्या हरकतें कर रही होती है। अब जब ये इस्लामी भाई जिनको इतना समझाता हूँ मैं, बाद बात कान खींचता हूँ, तब भी इनके कान भी रबड़ के नहीं वापस सेट हो जाते हैं, करते हुए ये जो इनकी आदत होती है। तो ये बेचारियां, इनको कौन समझाएगा, इतना जाया कर रही हैं। ये शोरबा यूं निकाला, ये आ गया, ये चला गया धुलने के लिए। अब कितना शोरबा है, वो गया गटर में, अब जो गटर साफ करते हैं अब उनकी भी तो रोजी चढ़ी हुई है ना। अरे शोरबा जब गटर लाइन में जाएगा तो उसमें ऑयल होता है, ऑयल से पाइप डिस्टर्ब होता है, पाइप लाइन जो सीवरेज लाइन, और जो मतलब हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ, बाहर मुल्कों में अगर एहतियातें होती हो तो मुझे पता नहीं है, हमारे यहाँ मतलब सीवरेज लाइन भी तंग होती है। आए दिन ये जो कमर्शियल बेस पर तामीरात होती हैं, तकरीबन यही होती हैं, ये बिल्डिंगें जो बन रही होती हैं, इसके फ्लैट आप बुक करा लो, इतने पैसे दे दो, उतने वे ले लो। अब ये बड़ा खूबसूरत और रंग रोगन, अंदर से इनकी पाइप लाइनें इतनी सड़ी हुई होती हैं और गंदी होती हैं बाजू का, ये इतना मतलब परेशानी होती है। इनको बनाना भी है ना, आदमी पैसे देकर इनको बोले कि यार जो होटलों में डालते हैं ना पाइपलाइन, वो डालो बड़ी बड़ी, पत्थर भी ना रुके यार। लेकिन सही बोलता हूँ, इतना तंग करती हैं पाइपलाइनें, यूँ घरों में भी उभर रही होती है। शुरू में नहीं पता चलता, बाद में जो हालत। फिर ये जो फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने वाले भी इतनी गड़बड़े कर रहे होते हैं, तजर्बे की बात कर रहा हूँ। इधर पॉइंट बना, उधर पॉइंट बना हुआ, प्लग लगा हुआ है, बल्ब जलता ही नहीं है। क्या करें यार, क्यों नहीं जलता, इसको दिखा वो पता ही नहीं चलता। फिर पता चलता तो चलता है कि इसमें अंदर पाइप वो नहीं है, वायरिंग नहीं है, खाली है, पॉइंट बनाकर इस बदबख्त ने पैसे खींच लिए, कनेक्शन नहीं लगाया। इतना धोखा करते हैं बिल्डिंगों में। तो जो कमर्शियल में खास करके ज्यादा ये मसाइल होते होंगे, तरह तरह के मसाइल होते हैं। मतलब आदमी अब क्या करे, ऊपर रहकर क्या बनाए यार, कितना बनाए। तो ऊपर रहकर आप बनाओगे, उसे कुड़कुड़ करोगे तो वो गुस्से में आकर काम छोड़ के चला जाएगा। ये भी एहतियात करनी है कि जब आप इमारत बनवा रहे ना, तो आप मजदूरों को आप कुछ भी नहीं बोला करें, आपकी नहीं सुनेगा वो, ये सुनेगा ना आपके। तो इसको जिसने फिक्स किया है ना, मजदूरी में रखा है, हायर किया है, वो मतलब उसको सुनाएगा। ये एक चुटकुला याद है मुझे, किसी जगह मस्जिद बन रही थी, तो एक इस्लामी भाई उसमें थे, मतलब पेश। तो मैंने एक बार उनको समझाया, मैंने कहा देखो ये जो मजदूर काम करते हैं इनको बोलना नहीं है कभी भी कि ये प्लस्तर यूं कर दो, तो ये इधर मतलब वायर यूं मोड़ दो, तो इधर क्या कर रहे हो, इधर करो, तो ये नहीं करना। तो सुना उसने, फिर बोला कि यार बात तो सही है, इसकी आदत थी समझे। तो लोगों ने एक दीवार थोड़ी टेढ़ी हो गई क्या, तो मेरे ऊपर आ गया है। तो वो जो रात दिन काम करते, अब उसकी रहनुमाई हम करेंगे। अब था भी थोड़ा वो दबंग आदमी, उसकी सुनी जाती होगी। तो ये एक चुटकुला समझने वाली बात है, तो बोलना नहीं है कुछ। वो पुरानी बात है कि एक जगह कुछ काम हो रहा था, तो मेरे साथ कोई था, तो वो जाकर उसके साथ खड़ा हो गया। फिर मैंने जब देखी ना वजीर, उसको बुला लिया। अच्छा वो सवाल जवाब कर रहे थे, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, छोड़ ले, इनको नहीं टच करने वाला नहीं होता। कारीगरों को इनको पहले से जो भी करना है वो अच्छी तरह समझा दिया जाए, बाद में इन पर आप टक 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 करेंगे ना, तो कहीं उठा के आपको टक टक ना कर दे। तो इसलिए वो हर काम, हर मामले में हिकमत से काम लेना होता है। इसकी हमारे पास कमी है, तो यूं बहुत काम खराब हो जाता है, दिल आजारियाँ हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बस आता जाता कुछ नहीं। ना खाना निकालना आता है, ना पेट में डालना आता है, इसमें 1000 गलतियाँ मुबालगा करूँ तो मैं गिनवा सकता हूँ। मुबालगा है, इतनी गलतियाँ हो रही होती है।
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला सल्लल्लाहु मुहम्मद। ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अभी जो बातें बयान हुई हैं इसको आप सफाई, नज़ाफ़त, सुन्नत तंज़ीफ़ के तौर पर भी कई जगहों पर हम बयान करते हैं। और मैंने अमीर सुन्नत से एक और बात भी सीखी थी, मैं चाह रहा था कि ये सब पहुँचे, क्योंकि कई चीज़ें सिविक सेंस और कॉमन सेंस के उसमें आती हैं दायरे कार में। हुज़ूर दस्तरखान जैसे उमूमन अब हमारे यहाँ ना ये कप जो है ना ये यूँ रखे जाते हैं ना, ये जैसे गिलास होता है तो गिलास यूँ रखा जाता है ना, उल्टे रखे जाते हैं, तो यूँ पी के भी इधर से ही सारा निज़ाम होता है और टेबल की सफाई का इतना बंदोबस्त होता नहीं है। तो एक तो ये कि इसको यूँ रखना, इसके ताल्लुक़ से भी बयान है। तो उस तरह की ये जो प्लेटें होती हैं उमूमन जो अब ये मेरे साथ भी हुआ है, तो बड़ी हैरत होती है कि पानी भरा हुआ है प्याले के अंदर और प्लेट उमूमन है ना ये प्लेटें रखने का यूँ निज़ाम है। यही प्लेट को उठाकर इस कप के ऊपर रखा गया है और जब मैंने ये प्लेट उठाई है तो यहाँ से सारा पानी निकल रहा है। तो अब ये इतनी मतलब इसके अंदर कराहियत पैदा हो जाती है कि यार ये सारा इसका जो पेंदा था ये तो मिट्टी वाला या जो भी इसके साथ हुआ होगा सलूक, इसको पानी में धो दिया गया और मेरे को कहा अब आप इसको पी लो, ठीक है। तो एक तो ये एक सिस्टम, तो मैं चाह रहा इस पर भी आपकी तरफ से इंशाल्लाह रहनुमाई होगी। दूसरा दस्तरखान पर आपके साथ एक चंद दफ़ा मुझे ये सीखने का मौका मिला कि जैसे कि 10-12 लोग दस्तरखान पर बैठे हैं तो उमूमन एक ही प्याला सालन का जैसा रखा गया है। तो अब एक ही प्याला भरकर सालन का जब रखा जाता है तो फिर ये 10 या 12 या 15 जो भी होते हैं ना, ये मांगते रहे ज़रा सालन देना, ज़रा सालन यहाँ रख देना। अगर उसी सालन के एक बड़े प्याले को चंद छोटे प्याले कहकर 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, इसी तरह दीगर खाने की चीज़ों को और दस्तरखान पर यूँ मतलब कि रख दिया जाए 2-2, 3-3 साल, तो ये बार बार, क्योंकि बादों की आदत ये होती है कि जैसे कि सालन का प्याला लिया, ये निकालने के बाद अब ये मतलब वही रहेगा, जब तो दूसरा मांगेगा नहीं ना, अपने को भी देने का क्या है इसमें। तो ये जो सारा जो निज़ाम जो बना हुआ है इसका हल अता फरमाते हैं। और घर घर की कहानी है, किस किस को आप समझाने जाओगे? आपको मदनी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह देखने वाले देख रहे हैं, देखने वालियाँ देख रही हैं, तो यूँ इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़र्क तो पड़ेगा अल्लाह ने चाहा तो। अब वो जिसको दही की आदत होती है ना, वो भी बेचारा आजमाइश होता है। वो एक प्याली दही की 15 आदमियों के बीच में रखी हुई है। अब जिसने भी दही ली ना करीब लेकर, उसने उस प्याली को रखना अपने कदमों में ही है, कदमों से जुदा नहीं होने देना। अब मेरे जैसा आदमी दही चाहिए हो, अब बस वो सब्र ही कर सकता और क्या कर सकता, ऐलान तो नहीं कर सकता। तो ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि मतलब अगर हो ये कि कब ज़ाहिर है कि जहाँ आप मेहमान है वहाँ बोल भी नहीं सकते, तो जो उठाए वो फिर ऐसी जगह रखे कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों का हाथ पहुँच सके। हर एक का ना भी पहुँचे तो कुछ का तो पहुँच जाए यार। सिर्फ अगर आप अपने कदमों में रखेंगे तो फिर किसी का भी नहीं पहुँचेगा। तो ये खाने की जो भी इस तरह की चीज़ें ना, दही है, रायता है, सालन है, तो ये मुख्तलिफ प्यालों में हो ताकि वो 3-3, 4-4 के बीच में एक हो ना प्याला या ट्रे, तो यूँ थोड़ा आसानी होती है। वरना ये क्या है, खा तो लेंगे वो लेकिन ज़रा उनको तकलीफ होगी। हिकमत अमल ही है इसमें। और बस बाकी है बहुत मसाइल हैं, एक यही नहीं, अगर गौर करने जाएंगे ना तो हर तरह की चीज़ें, यानी जैसे कि सलाद रखेंगे, सलाद का भी एक ही होगी ट्रे। आमतौर पर सलाद लोग कम खाते हैं, तो अब ये कि एक तो खाते बेचारे कम है, फिर वो एक ही ट्रे एक के कदमों में है, तो वापस या तो बचाना मकसूद है, नहीं खिलानी, महंगी है, और एक इसलिए रखी है ताकि किसी के कदमों में चली जाए और वापस हम उठाकर इसको इस्तेमाल करें, तो वो एक अलग आपकी मसले है। तो अगर खिलाना मकसूद है तो वो भी चंद हिस्सों में होनी चाहिए, बीच में रखी जाए, तो कोई अपने कदमों में इसको ना रखे, बीच में ही रहने दे। उठाई, ले लिया, तो फिर वापस बीच में रख दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम
सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। महबूब रब अकबर तशरीफ ला रहे हैं, महबूब रब अकबर तशरीफ ला रहे हैं, आज अंबिया के सरवर। बाबा जान आपको रब्बे नूर मुबारक हो। हैप्पी रब्बी अव्वल to all of you. Today I recite the past. Sallallahu alaihi प्यारे बच्चों, आइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में दुरूद पाक की कसरत करते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि कुछ बच्चों को थम के बगैर नींद नहीं आती तो क्या करें? अच्छा, अंगूठा चूसे बगैर नींद नहीं आती। जब नींद आ जाए ना तो अम्मी को चाहिए कि थम को निकाल कर कोई उसको कवर पहना दे कपड़े का, तो शायद कपड़े में फिर वो थम अंगूठा डालेंगे तो मजा नहीं आएगा। एक तो ये, और दूसरे इस तरह के पता चला कि लोशन भी होते हैं, अब ये लगाओ तो बदमजा, तो बच्चा मतलब मुंह में हाथ डालेगा तो फिर उसको निकाल देगा। ताहम ये कि इसके साइड इफेक्ट होंगे, मेरा ख्याल है केमिकल जो क्या क्या होता होगा इसकी मुझे तफसीलात मालूम नहीं है, लेकिन होते हैं बाज़ बच्चे ऐसे पावरफुल होते हैं कि ये लगाओ भी दो ना तो फिर भी उसको भी चूस लेंगे, चल जाता है। ये कि कोशिश की जाए, थम उंगलियां चूसते हैं तो ये मेल कुचैल इधर लगा हाथ उधर लगा, ये मेल जाता है, तो ऐसे बच्चों को पेट में कीड़े शायद काफ़ी होते होंगे, बार बार वो कीड़े और तड़पता होगा, ये ट्राई कर लेना। उंगलियां मुंह में रखते हैं ना, ये हर जगह हाथ लगता है, फिर हर चीज़ को मुंह में डालते हैं, इसको आस्तीन को मुंह में डाल के खाते रहेंगे, हर चीज़ को करते हैं। ये ऐसे बच्चों का पेट बड़ा डिस्टर्ब बेचारों का होता होगा और इनको समझ होती नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। माशाल्लाह अभी हमारे यहाँ जो काफ़िले आए हैं तो चांदराज से हम लाहौर से भी खुसूसी एरोप्लेन के ज़रिए मिलादी तैयारा, इसमें भी हमारे आशिकान रसूल जो है वो यहाँ पर 2 दिन के लिए इन्होंने भी स्टे भी किया है और आज ये भी मदनी मुज़ाकरे में शामिल है।
नाजरीन से किए गए सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह अन्हु का असल नाम बताइए। जवाब शाइबा। सवाल नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर सुबह शाम कितने फरिश्ते हाजिर होते हैं? जवाब 70,000 70,000। सवाल नंबर 3, नाले पाक के मौजू पर सबसे मुस्तनद किताब का नाम बताइए। जवाब फ़तहुल मताल फ़ी मदहिल निआल। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: नौमान अत्तारी डेरा गाजी खान, मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी झंग, बिनते खालिद साहिवाल, बिनते अशरफ अत्तारिया लांडी कराची, बिनते मुज़म्मिल हुसैन अत्तारिया लाहौर, उसैद रज़ा रावलपिंडी, बिनते ग़ुलाम शब्बीर अत्तारिया इस्लामाबाद। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम बिनते अशरफ अत्तारिया लांडी कराची। इनको तोहफे में 12 माह की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे, इनको 12 माह तक इनके एड्रेस पर कलर माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज के मदनी मुज़ाकरे से रिलेटेड सवालात ये नोट कर लिए जाएँ। सवाल नंबर 1, कसीदे बुर्दा शरीफ के कितने अशार हैं? सवाल नंबर 2, इमाम बोसेरी रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात शरीफ किस सिने हिजरी में हुई? सवाल नंबर 3, इस्लाम के पहले मुजद्दिद का नाम बताइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मालूमाती खजाना है ये, आफियत का ठिकाना है ये, आ जाए सब सीख ले दीन को, नेकी की राह पे लाना है ये, नेकी की राह पे देखते रहिए मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, देखते रहिए मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।